بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، جب دل گھبرانے لگے تو میرا یہ بیان ضرور سن لینا۔ جب گھر میں غریبی آنے لگے، جب تمہارا گھر غریبی کی دلدل میں پھنس جائے تو یہ 3 کام ضرور کرنا۔ جب تمہارے شریک تمہیں تانے دینے لگے، جب تمہاری محنت بیکار ہونے لگے تو حضرت سیدنا علی کے بتائے ہوئے یہ 3 عمل ضرور کر لینا۔ پھر دیکھنا تمہارے گھر میں سے غریبی کے جنازے اٹھتے نظر آئیں گے، تمہارا گھر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتا دکھائی دے گا۔ لیکن سب سے پہلے تمہیں ایک غریب شخص کی کہانی سناتی ہوں۔ تو میرے پیارے ناظرین، کہانی شروع کرنے سے پہلے میں تمہیں بتاتے چلوں کہ آج کا بیان آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ بیان آپ کو غریبی کی دلدل سے نکال دے گا، تمہارے گھر میں امیری لائے گا، تمہارا گھر خوشیوں سے بھر جائے گا۔ وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ رات کا سناٹا تھا اور ایک غریب شخص جس کا دل مایوسی اور اندھیروں سے بھرا ہوا تھا، غریبی نے اسے چکنا چور کر رکھا تھا۔ وہ ایک رسی لیے اپنے کمرے کے کونے میں کھڑا تھا۔ زندگی کی سختیوں نے اس کے ارادے توڑ دیے تھے۔ غریبی، بھوک اور لوگوں کے طعنوں نے اس کی برداشت کی حد پار کر دی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا، اگر میں مر جاؤں تو شاید ان تمام تکلیفوں سے نجات پا لوں۔ اگر میں خود کو موت کے حوالے کر دوں تو ممکن ہے روزانہ کی پریشانیوں سے بچ جاؤں۔ لیکن جیسے ہی اس نے رسی کو اپنے گلے میں ڈالنے کی کوشش کی، اچانک اس کے ضمیر نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، ایک گنہگار انسان، یہ تو کیا کرنے جا رہا ہے؟ یہ تو سراسر اللہ کی نافرمانی ہے۔ وہ اللہ جس نے تمہیں پیدا کیا، تجھے زندگی دی اور تجھ پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے، کیا تو بھول گیا کہ اللہ کی آزمائش صرف وقتی ہوتی ہے لیکن اس کی ناراضگی ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے؟ جو لوگ اللہ کے ناپسندیدہ عمل کرتے ہیں وہ نہ دنیا میں سکون پاتے ہیں اور نہ آخرت میں۔ اللہ نے فرمایا، میں کسی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ یہ دنیا کی تکلیفیں تو ایک دھاگے کی طرح ہلکی ہے، لیکن آخر تک کی تکلیفیں پہاڑ کی طرح بھاری ہوگی جنہیں تو کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ دنیا میں جو مشکلیں تجھے دی گئی ہے وہ صرف تجھے مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ جو لوگ آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسے راستے سے نوازتا ہے جو ان کی عقل کو بھی حیران کر دیتا ہے۔ یاد رکھ، خودکشی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جو جہنم کی طرف کھلتا ہے۔ ضمیر کی یہ آواز سن کر غریب کا دل کانپ اٹھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رسی کو ایک طرف پھینک دیا اور زمین پر گر کر رونے لگا۔ بڑے ہی ارمان کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہمارے سماج میں کتنے ایسے لوگ ہیں جو غریبی کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنی زندگی ختم کر چکے ہیں۔ کچھ تو اپنے معصوم بچوں کو بھی ساتھ لے کر خودکشی کر چکے ہیں، جیسے کہ دنیا کی پریشانیوں کا یہی اکیلا حل ہو۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ ان کاموں سے کتنا ناراض ہوتا ہوگا؟ کیا ہم نے کبھی یہ سمجھا کہ یہ عمل نہ صرف ہماری زندگی برباد کرتے ہیں بلکہ ہماری آخرت کو بھی تباہ کر دیتے ہیں؟ خودکشی کرنا یہ مان لینا ہے کہ اللہ کی رحمت ہم پر ختم ہو چکی ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی اپنے بندوں کو بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ اس غریب شخص نے جو اپنی زندگی ختم کرنے کے کگار پر تھا، رسی کو گلے سے نکالا اور زمین پر پھینک دیا۔ بھری ہوئی آنکھوں اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ بھاری قدموں سے وہ اپنے بچوں کی طرف لوٹنے لگا۔ اس کا دل ایک طوفان کی طرح بے چین تھا اور اس کا ذہن مایوسی کی گہرائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ راستے میں اسے ایک پرانا درخت دکھا جس کے نیچے ایک بزرگ اللہ کی عبادت میں مشغول تھے، وہ بزرگ جن کا چہرہ سکون اور نور سے بھرا ہوا تھا۔ غریب شخص جو اپنی ٹوٹن اور بے بسی کا بوجھ لیے پھر رہا تھا،
हिम्मत जुटाकर उस अल्लाह वाले के पास जाकर बैठ गया। जब अल्लाह वाले ने नमाज मुकम्मल की और सलाम फेरा तो गरीब शख्स रो पड़ा। उसकी आवाज़ में दर्द, उसके लहजे में बेबसी और आंखों में इल्तिजा थी। वह गरीब बोला, ए अल्लाह के दोस्त, तेरे चेहरे पर जो सुकून है बस वही सुकून मुझे चाहिए। मेरे बच्चे भूखे हैं, बीमार हैं और मेरे पास उन्हें खिलाने के लिए कुछ नहीं। मैं आज अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने जा रहा था। मेरे ज़मीर ने मुझे झकझोर कर कहा कि ये अल्लाह की नाफरमानी है, मगर अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मुझे कोई ऐसा रास्ता बता जिस पर चलकर मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, मेरे कर्ज उतर जाएं और मेरा दिल सुकून पालें जो शायद तूने पा लिया है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो हमारे आसपास खुदकुशी हो रही है, ये गरीब लोग जो भूख और मायूसी से तंग आकर मौत को गले लगा रहे हैं, इसके ज़िम्मेदार सिर्फ वह नहीं, हम सब हैं। क़यामत के दिन हमें इन सब चीज़ों का जवाब देना होगा। अल्लाह हमसे सवाल करेगा, तुम्हारे पास माल था, तुम्हारे पास वसाइल थे, फिर तुमने अपने भाइयों की मदद क्यों ना की? सोचो, अगर हम अपनी ज़कात वक्त पर निकालते, गरीबों को उनका हक देते, फितराना और असर की अदायगी करते, तो क्या ये लोग खुदकुशी करते? कभी नहीं। अपने माल का एक हिस्सा उन ज़रूरतमंदों के लिए निकालते जिनके बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, तो क्या ये लोग मौत को गले लगाते? कभी नहीं लगाते। आजकल के अमीरों का हाल ये है कि उनके दस्तरखान पर इतना खाना होता है कि बर्बाद हो जाता है, लेकिन गरीब के बच्चे भूख से बिलख बिलख कर सो जाते हैं। सुनो, माल देने से कम नहीं होता, लेकिन दिल सख्त करने से सुकून ज़रूर ख़त्म हो जाता है। अगर आज हमने गरीबों का हक अदा ना किया तो यही माल क़यामत के दिन हमारे लिए आग का अंगारा बन जाएगा। हमें सोचना होगा, हमें बदलना होगा, क्योंकि जो दौलत अल्लाह ने दी है उसमें दूसरों का हक भी शामिल है। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। फर्ज करें कि एक दरिया के किनारे 2 शख्स बैठे हैं। एक के पास सिर्फ एक बाल्टी है, लेकिन वह लगातार दरिया से पानी निकालकर प्यासों को पिला रहा है। दूसरा शख्स वहीं बैठा है जिसके पास पानी जमा करने के लिए बड़े बड़े बर्तन भरे हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद वह किसी को एक कतरा भी नहीं देता। पहला शख्स हर वक्त दूसरों की मदद कर रहा है और उसके पास पानी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि दरिया से ताज़ा पानी लगातार आता रहता है। लेकिन दूसरा शख्स जिसने सारा पानी जमा करके रखा है, धीरे धीरे उसका पानी ख़राब हो रहा है और उसमें बदबू आने लगी है। ये मिसाल हमें सिखाती है कि जो लोग अपनी दौलत को दूसरों की भलाई के लिए खर्च करते हैं, उनकी बरकत कभी ख़त्म नहीं होती, लेकिन जो अपनी दौलत को जमा करके रखते हैं और किसी की मदद नहीं करते, उनका माल उनकी ज़िंदगी में बोझ बन जाता है। दौलत और पानी दोनों का फ़ायदा तभी है जब वह बहते रहे, रुक जाएं तो नुकसान ही पहुंचाते हैं। वह पानी से भरे हुए हैं, मगर फिर भी वह किसी को कुछ नहीं दे रहा। कुछ वक्त के बाद पहला शख्स जो पानी बांट रहा होता है, वह खुश और मुतमईन नज़र आता है, क्योंकि उसकी बाल्टी में हर बार नया पानी आ जाता है। लेकिन दूसरा शख्स जो अपने बर्तनों को भरे रखता है और किसी को नहीं देता, वह परेशान और बेबस बैठा है, क्योंकि उसका पानी ठहर गया और उसमें बदबू आने लगी। कहने का मतलब यह है कि माल वही पाक और बरकत वाला होता है जो दूसरों के साथ बांटा जाए। जो लोग अपनी दौलत को रोक कर रखते हैं और दूसरों का हक अदा नहीं करते, उनका माल उनके लिए जहमत बन जाता है, जबकि जो लोग अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, उनके लिए माल का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। बात लंबी हो गई, इसकी माफ़ी। खैर, अल्लाह वाले ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, एक छोटी सी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर गरीब शख्स को बहुत बड़ा हौसला मिल गया। कहा, एक मर्तबा एक शख्स समुंदर के किनारे चल रहा था। वह अपनी ज़िंदगी की मुश्किलों से बेहद परेशान था और अल्लाह से गिला कर रहा था, मैं इतनी मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं आता? तूने मुझे इन मुश्किलों में क्यों डाल रखा है? अल्लाह, तूने मुझे गरीबी में क्यों डाला? तूने मुझे परेशानियों और मुसीबतों में क्यों दफन किया? इसी दौरान उस गरीब ने
समंदर के किनारे एक मछली देखी जो एक शिकारी के जाल में फंसी हुई थी। मछली बेताब होकर वापस पानी में जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जाल की पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी अचानक एक बहुत बड़ी पानी की लहर आई और मछली को जाल समेत बहाकर वापस पानी में ले गई। पानी के अंदर जाने के बाद मछली आज़ाद हो गई और गहरे पानी में तैरने लगी। ये हैरान कर देने वाला मंजर था। देखकर वह शख्स समझ गया कि जैसे अल्लाह ने उस मछली को जाल से निजात दी, वैसे ही अल्लाह अपने बंदों को मुश्किलों के जाल से आज़ाद करता है, लेकिन इसके लिए वक्त और सब्र ज़रूरी होता है। अल्लाह की रहमत हर लम्हा हमारे साथ होती है, लेकिन हम उसे देख नहीं पाते क्योंकि हमारे पास ना वक्त होता है और ना सब्र। एक दिन हजरत सैयदना अली ने लोगों को मुख्तलिफ करते हुए फरमाया, जब तुम्हारी ज़िंदगी में गरीबी, परेशानियाँ या मुसीबत आएँ और तुम्हें लगे कि सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो फ़ौरन ये 3 अमल ज़रूर कर लो। पहला अमल ये है कि सदका दो, चाहे वह कितना ही मामूली क्यों ना हो, क्योंकि सदका न सिर्फ मुश्किलों को ख़त्म करता है बल्कि तुम्हारे माल में बरकत भी लाता है। सदका गरीबी को ऐसे मिटा देता है जैसे पानी आग को बुझा देता है। दूसरा अमल ये है कि इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, क्योंकि इस्तग़फ़ार बंद रिज़्क़ के दरवाजे खोलता है और दिलों पर छाई मायूसी की धुंध को ख़त्म कर देता है। हजरत सैयदना अली ने फरमाया कि इस्तग़फ़ार गुनाहों के बोझ को हल्का करता है और अल्लाह की रहमत को तुम्हारी ज़िंदगी में दाखिल करता है। तीसरा अमल ये है कि अपने वालिद की खिदमत करो और उनकी दुआएं लो, क्योंकि वालिद की दुआएं मिट चुकी तकदीर को भी बदल सकती है और अल्लाह की रहमत को तुम पर नाजिल करती हैं। ये 3 अमल तुम्हारी ज़िंदगी से गरीबी और परेशानियों के जनाजे उठा देंगे और तुम्हारा घर खुशियों और सुकून से भर जाएगा, यहाँ तक कि तुम्हारा घर जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगा। याद रखो, अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है जो खुलूस ए नियत से अमल करते हैं और दूसरों के लिए आसानी पैदा करते हैं। यहाँ मैं तुम्हें एक और मिसाल देती हूँ। सोचो कि एक ज़मीन है जिसे किसान ने बहुत मेहनत से तैयार किया है। ज़मीन जरखेज़ है, लेकिन किसान ने इसमें बीज बोने के बजाय उसे खाली छोड़ दिया, इस सोच के साथ कि मेरी ज़मीन तो जरखेज़ है, यहाँ बीज बोने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ दिनों बाद ज़मीन पर झाड़ियाँ और कांटे उगने लगे। किसान परेशान हो गया और कहने लगा, ये ज़मीन तो जरखेज़ थी, फिर इसमें कांटे क्यों उग गए? हकीकत ये थी कि ज़मीन खाली थी और खाली ज़मीन हमेशा बेफ़ायदा चीज़ों से भर जाती है। ये मिसाल हमें सिखाती है कि इंसान का दिल भी उसी ज़मीन की तरह है। अगर उसे अल्लाह की याद, नफ़े के अमल और अच्छाई के बीजों से भरा ना जाए तो उसमें गुनाह, मायूसी और बेकार ख़यालात के कांटे उगने लगते हैं। खाली दिल और खाली ज़मीन दोनों ही नुकसान का सबब बनते हैं। इन्हें हमेशा अच्छाई से भरते रहना चाहिए। यही मिसाल इंसान के दिल की है। अगर इंसान का दिल अल्लाह की मोहब्बत, शुक्रगुजारी और नेक अमल से भरना हो तो उसमें मायूसी, बेसब्री और गुनाह के कांटे उगने लगते हैं। दिल खाली नहीं रहता, या तो उसे अल्लाह की याद से भर दो या फिर ये मायूसी और गुनाह से भर जाएगा। ये मिसाल हमें सिखाती है कि इंसान की ज़िंदगी में अमल और नीयत का होना कितना ज़रूरी है। जिस तरह झरके ज़मीन को बीज और पानी चाहिए, उसी तरह इंसान की रूह को अल्लाह की याद और अच्छे अमल का सहारा चाहिए। जिस दिल में अल्लाह की मोहब्बत हो वह कभी गुनाह और मायूसी का घर नहीं बनता। तो मेरे प्यारे इस्लामी बहनों और मेरे भाइयों, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे लाइक करें और इसे आगे तक ज़रूर पहुँचाएँ।